D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम आए, हमारे साथ हैं रासा के सदस्य जो आज यहाँ पर मिलने आए हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन के जो वाइस चेयरमैन नवनियुक्त हैं डॉक्टर वीरेंद्र भाटिया। इनसे बात करते हैं कि इन्हें क्या मुश्किल आ रही हैं। सर सत श्री अकाल जी, थोड़ा सर बताएंगे आपको किस तरह की परेशानी आ रही है। आपका पहले नाम बता दीजिए और कौन से एसोसिएशन। नवजोत ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਮਾਡਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ CBSE ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ 30% ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਈ ਟੂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਆਈ ਟੂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਬੋਰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ 10th ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਵੱਖਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ CBSE ਨੇ 30% ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ 9th ਤੋਂ 12th ਤੱਕ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ 5000 ਡਿਊ ਆ, ਤੁਸੀਂ 500 ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਜੀ? ਰਾਸਾ ਜੀ, RASA, ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ +2 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ +2 ਦਾ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਬੱਚਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ। ਕਲੌਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹ 3 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਬੋਰਡ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ 2 ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਪੇਪਰ ਦਵੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 2 ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੇਪਰ ਉਹ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ये देखिए, ये थे रासा के सदस्य नवजोत, जिन्होंने बताया कि किस तरह पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो के साथ एफिलेटेड स्कूल हैं उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने वाइस चेयरमैन को एक ज्ञापन भी दिया है। हम उनसे बात करते हैं कि इनकी समस्याओं का वो क्या समाधान करेंगे और कब तक करेंगे। हमारे साथ हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नवनियुक्त वाइस चेयरमैन डॉक्टर वीरेंद्र भाटिया। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर आज रासा के जो सदस्य हैं इनसे क्यों मिलने आए थे, उनकी क्या डिमांड्स हैं और इस पर ये क्या काम करेंगे। सर आपका हमारे चैनल D4 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर थोड़ा बताएंगे जी आज की जो मीटिंग हुई आपकी उसके बारे में। ऐसे था कि मैंने परसों ही ज्वाइन किया था एज वाइस चेयरमैन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, और अमृतसर इस समय मैं अपने घर में ही बैठा हुआ हूँ। तो इन सब का मन था कि ये मुझे मुबारकबाद देना चाहते थे
और इनके माइंड में था कि कुछ इनकी समस्याएं भी है, उनके बारे में भी मुझे एक ज्ञात पत्र देना चाहते थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में जो मेरी आगमन है उसका उन्होंने स्वागत किया। तो इट वाज मोर और लेस ए कर्टसी मीटिंग, औपचारिक तौर पे जो मुझे शुभकामनाएं देने आए। और इसके अलावा इनकी कोई लंबित समस्याएं शायद पंजाब सरकार या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड या शिक्षा से जुड़ी कोई इनकी कुछ जेन्युइन समस्याएं जो इन्होंने बताई हैं मुझे है, उसके बारे में ज्ञात पत्र दिया। क्या समस्याएं डॉक्टर साहब इनको आ रही हैं? अभी मैंने इनका अच्छी तरीके से गो थ्रू तो नहीं किया है, लेकिन जैसे मेरे को उनको पता लगा कि इनकी काफ़ी सारी समस्याएं जो हैं वो जेन्युइन है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये लॉकडाउन है और सरकारें स्कूल सब भी जो हैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक तो कुछ परिवार ऐसे हैं बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कई जगह नेटवर्क नहीं है। इससे कितनी एजुकेशन जो है प्रभावित हो रही है? ये कोई समस्या सिर्फ पंजाब की नहीं है। पंजाब में तो फिर हालत बहुत ज़्यादा कोई मैं समझूं कि ख़राब नहीं है। पूरे देश में लॉकडाउन के कारण शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित है। जहाँ तक ऑनलाइन एजुकेशन का सवाल है, मैं इस बात को मानता हूँ कि सभी विद्यार्थियों के पास इसकी पहुँच नहीं है, क्योंकि मैंने अभी नया नया ही ज्वाइन किया है, एक आधा दिन ही हुआ है। तो जो मेरा जाती विचार है कि हम इसके ऊपर थोड़ा जितना और एनालिसिस करेंगे और जिन बच्चों के पास ये सुविधाएं जो है वो नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई में कमी आ रही है, उसके लिए कोई ऑप्शन निकाला जाए, इसके लिए कोई अल्टरनेटिव निकाला जाए, ताकि वो जो शिक्षा की जो चेन है, वो जो लड़ी है, उसके साथ वो टूट ना सकें। इंस्टेंट हल किसी भी सिचुएशन के निकालने बड़े आसान नहीं होते। जैसे कोविड की समस्या, ये आज तक वैक्सीन नहीं आया, ये हम लड़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो ठीक है बात आपकी, लेकिन आज जहाँ तक ये देखा गया है, कोई भी सर्टिफिकेट जो है +2 के बाद निकलता है, ये एक कागज़ का टुकड़ा मात्र बन के रह गया है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक यू टर्न चेंज आने वाला है। आपने जैसे नई शिक्षा नीति को ही देखा है जो केंद्र ने जारी की है, उसमें हम लोग स्किल जो बेस्ड एजुकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में बड़े नीचे के लेवल से ही, छठी कक्षा के लेवल से ही आगे जो है स्किल्स की बात की गई है। ये बात बड़ी देर से मिसिंग थी पूरी शिक्षा प्रणाली में, क्योंकि जैसा आपका सवाल है कि ये जो सर्टिफिकेट है एजुकेशन का, ये एक सर्टिफिकेट ही रह गया है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। किसी को कुछ काम करना आता है तो फिर उसका जो है एम्प्लॉयमेंट मार्केट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में रेलेवेंस रहेगा। कागज़ों का कोई स्कोप नहीं है। इसके लिए हमें एक लड़ाई लड़नी होगी। जो माइंडसेट है हमारे विद्यार्थियों का और जो उनके पेरेंट्स का माइंडसेट है, उनको हमें बदलाव लाना पड़ेगा कि बच्चा जो है कुछ सीखे, ना कि सिर्फ पेपर दे दिए और एक सर्टिफिकेट आ गया तो वो समझे उसकी एजुकेशन पूरी हो गई। एजुकेशन का मतलब यही है कि जो हमें ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसी ताकत जो हमें काबिल बनाती है। डॉक्टर साहब, +2 के बाद बहुत सारा यूथ जो है पंजाब का बाहर को विदेशों को जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का फ्यूचर जो एवरीबॉडी सेइंग माय फ्यूचर इज़ नॉट ब्राइट हेयर। तो इसके लिए आपको नहीं लगता कि ऐसे तो पूरा कब यहाँ बुज़ुर्गों का देश रह जाएगा ये? हाँ, बड़ी सामाजिक समस्या भी है, ये एक आर्थिक समस्या भी है, क्योंकि बच्चों के पास +2 के बाद, मैं पंजाब की सिर्फ बात नहीं करूँगा, देश के काफ़ी हिस्सों में ऐसा है कि ना तो इंडस्ट्री उस तरीके से ग्रो कर रही है और ना ही ट्रेड उस तरीके से ग्रो कर रहा है। आपने देखा ही है कि हमारा जीडीपी का लेवल काफ़ी माइनस आ चुका है और कोविड के कारण हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो चुनौतियों से भरपार हो गई है और ऐसा लगता भी नहीं है मुझे कि बड़ी जल्दी इससे निकल जाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल, जीडीपी तो सर अब खराब हुई, कोविड अब आया मार्च 2020 में, इससे पहले भी जो है युवाओं का वो रुख जो है वो, मेरा सवाल ये है कि विदेशों की तरफ क्यों बढ़ता जा रहा है, अपने देश से जो बच्चे हैं मुख क्यों मोड़ रहे हैं? मैं साफ तौर पे ये मानता हूँ, मैं कोई सरकारी आवाज़ के तौर पे नहीं बात करूँगा, वैसे जो मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, ये +2 के बाद बच्चों को मैं देखता रहा हूँ, क्योंकि 3 कॉलेजों का मैं प्रिंसिपल के तौर पे भी मैंने काम किया है। एक तो जो वेस्टर्न लाइफ की चकाचौंध है, सोशल सिक्योरिटी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो ल्योर करती हैं हमारे युवाओं को। क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको लगता है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं है। इंडिया में
एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज भी बहुत ज़्यादा है, कोई माने ना माने, लेकिन ये एक ट्रुथ है कि इसके ऊपर हमारे काम नहीं हुआ, बातें ज़्यादा हुई हैं। तो हमारा जो स्टूडेंट है +2 के बाद का, वो डिसइल्यूजन्ड हो गया है। मैंने ज़्यादा समय हायर एजुकेशन में भी लगाया है। हायर एजुकेशन क्वालिटेटिव नहीं है। जो हमारे यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, बच्चों को जिस स्टैंडर्ड की शिक्षा देनी चाहिए वो देने में कामयाब नहीं हुए हैं। इस कारण भी बच्चों का वहाँ पर मोह जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर कमी है। हम इसको अभी उस जगह पे नहीं पहुँचे कि जो हमारे पास कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस हो और हमारे बच्चे यहाँ पर रिटेन कर सके। पर सर फिर इसके लिए मानते हैं ये जो तमाम नीतियाँ हैं ये सरकारें जिम्मेदार हैं इसके लिए? सरकारें जिम्मेदार तो नहीं मैं सीधे तौर पे कहूँगा हैं, लेकिन कम से कम मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी नीतियों में कमी है। इसके कारण जो है वो ये सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि सरकारें आती हैं, बदलती हैं, जाती हैं, लेकिन ये ट्रेंड लगातार कंटिन्यूड है। ये किसी विशेष सरकार के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है, जो बच्चों का माइग्रेशन है या पलायन है। तो समस्या वही की वही। एक और बात मेरा डॉक्टर सवाल आपसे है, जैसे अब सरकार ने बोल दिया है कि 21 सितंबर को स्कूल खोल दिए जाएं। कोविड की महामारी है, जब कोई इक्का दुक्का मरीज थे तो वो बंद कर दिया, अब रोज़ हज़ारों केस आ रहे हैं। इसे लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, सरकारी फैसलों के ऊपर कमेंट करना मेरे डोमेन में भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये बड़े लेवल के ऊपर किए गए फैसले होते हैं। ओवरऑल उन्होंने अपने एंगल से सिचुएशन को देखा होगा, क्या ठीक है और क्या गलत है। आपकी बात ठीक है, हेल्थ के नाम पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। मुझे भी डर है यदि मास स्केल के ऊपर स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ से प्रेशर भी है कि बच्चों के पेपर कराए जाएं, स्कूल खुलें, वो करें। तो मुश्किल तो है सर, इसमें जो है वो दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि कोविड की जो है रेट है वो हर दिन बढ़ रहा है और हमारे पास इसका कोई कारगर इलाज नहीं है सिवाय परहेज के। डॉक्टर साहब आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है कि कितने बच्चे इस लॉकडाउन में स्कूल से छोड़ गए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं या साधन नहीं थे? मेरे पास कोई स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स तो नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है, कोई डाटा नहीं है, लेकिन जाती तौर के ऊपर मेरे काफ़ी नॉलेज में ऐसे बच्चे आए हैं जिन्होंने उनके पेरेंट्स भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि अब ऑनलाइन पढ़ाई ही होनी है और 1 साल छुड़वा भी लेंगे, पैसे भी इतने नहीं हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगले साल पढ़ाने का फ़ैसला कर सकेंगे। क्योंकि रोटी और पढ़ाई में फिर बात बड़ी ठीक है, घर की रोटी नंबर 1 है, पढ़ाई हिंदुस्तान की गरीब जनता के लिए दूसरे नंबर पे है। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि बच्चे अपनी पढ़ाई ना टूटे। जैसे पंजाब सरकार ने फ़ीसों के मामले में कुछ स्टैंड लिए हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई फ्री हुई है, तो ऐसी कोई मानसिक दिक्कत दूर करने की सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है। सरकार के पास अनलिमिटेड अल्टरनेटिव्स नहीं होते, सारा काम फाइनेंस और रिसोर्सेज से ही होता है। डॉक्टर साहब क्या आप ऑनलाइन को शिक्षा का विकल्प मानते हैं? अगर नहीं मानते तो फिर ये जो गैप पड़ा है इसकी भरपाई कैसे होगी? बहुत अच्छा सवाल किया तो आपने। मैं ऑनलाइन शिक्षा को शिक्षा का विकल्प सीधे तौर पे कहता हूँ नहीं मानता। ऑनलाइन शिक्षा सिर्फ कोविड के कारण एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो टीचर और स्टूडेंट का जो पर्सनल टच है उसके बिना एजुकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती और एजुकेशन कभी भी मैकेनिकल तरीके से इम्पार्ट नहीं की जा सकती। आप भारत का इतिहास देखिए, गुरुकुल की प्रथा थी, जो शिष्य था वो गुरु के पास ही रहता था, चाहे राजा का राजकुमार ही क्यों ना हो, तो तभी शिक्षा जो है वो पूरी हो पाती थी। जितनी देर पास नहीं पहुंचेगा शिष्य गुरु के पास, अपने टीचर के पास, उसकी शिक्षा कभी भी समर्पित और कंप्लीट नहीं हो सकती और शिक्षा के जो गुण उसमें चाहिए वो कभी भी आ नहीं सकते। भरपाई होना नियर फ्यूचर में इम्पॉसिबल तो नहीं है। सिचुएशन नॉर्मल होगी, दोबारा ट्रैक पे आएंगे, क्लासेस स्कूलों कॉलेजेस की लगेंगी जैसे पहले था, जिसका मुझे लगता है कि अभी काफ़ी टाइम लगना है। तो भरपाई अभी तो मैं यही कहूँगा कि इट इज़ ए डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि एक और अहम सवाल है कि बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर स्कूल लेवल पे कुछ ऐसे प्रोग्राम नहीं हैं
क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत हायर लेवल का हो चुका है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं अभी ज्वाइन किया है तो मैंने जाके देखना है जल्दी ही कि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अपने स्कूली छात्रों के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं, क्या क्या उनके सिलेबस में हमने रखा हुआ है और क्या उनको डाइट दे रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। लाइफ स्किल्स नहीं है हमारे स्कूली छात्रों में, ना तो वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, ना ही उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो है मुश्किलों का सामना करने के लिए दिमागी तौर के ऊपर तैयार हैं, ना ही उनमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप्ड हैं। ये सारी चीज़ें इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रोल अदा करती हैं। सिलेबस कर लिया, पढ़ के पेपर भी 99% ले लिया, लेकिन ज़िंदगी की लड़ाई में आदमी फ़ेल हो गया, इसका मतलब उसकी शिक्षा पूरी तरह से फ़ेल हो गई। तो इसके ऊपर जो है वो मेरे मुताबिक 6ठी क्लास या 8वीं क्लास के ऊपर ही सीरियस तौर पे बच्चों को डोज दे देनी बहुत ज़रूरी हो जाएगी। यदि नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे सीनियर हैं उनके ध्यान में, शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में लाया जाए और ऐसा कुछ बनाया जाए, कुछ प्रोग्राम्स किए जाएँ, कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए जाएँ। इसके लिए हमें अपने टीचर्स को भी तैयार करना होगा। सिर्फ सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रोफिशिएंसी स्टूडेंट की बना देनी किसी भी अध्यापक की कोई कामयाबी मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता। उसने कैसे फेस करने के लिए तैयार किया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें कोशिशें करेंगे। मैं स्टेटस अभी तो मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है अभी कमियां हैं इसमें जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। बातें तो अभी और भी कई हैं लेकिन समय का अभाव है। ये थे डॉक्टर वीरेंद्र भाटिया जो वाइस चेयरमैन हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के, जिन्होंने बताया है कि शिक्षा में कई तरह की कमियां हैं। वैसे भी ये ऑनलाइन शिक्षा को शिक्षा का विकल्प तो नहीं मानते हैं, लेकिन अब ये क्योंकि सरकार के नुमाइंदे हैं इसलिए कुछ बहुत खुलकर बोल भी नहीं सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर भी इनका कहना है कि बहुत कुछ होना बाकी है। ये कई सुझाव सरकार को देंगे। अक्सर क्या देखने में आया, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, नेता वायदे करते हैं, वायदे वहीं के वहीं रह जाते हैं, फिर 2 साल 4 साल बाद नई समस्या पैदा हो जाती है। हमारा अपने चैनल के माध्यम से लोगों को भी संदेश है, आपको खुद जागरूक होना होगा, अपने अधिकारियों के लिए जागें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं, नहीं तो बहुत पिछड़ जाएंगे। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।